بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ تھوڑی سی بات کرنی ہے، یہ جو قاضی فائز عیسیٰ اور اس کی آئین پسندی، آئین پر ہی چلنا ہے، اسی ٹیکسٹ پر چلنا ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ بہت باتیں کر رہے ہیں لوگ، ماشاءاللہ بڑا شاندار تجزیہ کرتے ہیں، سب کچھ سامنے ہے، پتہ چل جاتا ہے سارا جب کوئی بندہ بولتا ہے کیا بولتا ہے، کتنا سچ ہوتا ہے، کتنا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تو بڑا عجیب بندہ نکلا ہے، بڑی عجیب، اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اس کا نام آتے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بندے کا ہائی ہو جاتا ہے جیسے یہ باتیں کرتا ہے، جیسے یہ آبزرویشن دیتا ہے، جو کچھ بھی یہ کرتا ہے، مطلب کس قدر یہ غلیظ گندا آدمی ہے۔ کہاں اس پر نظر پڑی افتخار چودھری کی، اس وقت ہم افتخار چودھری کے گیت گاتے تھے، احمد شرف نے اس کے خلاف کیا، اور اندر کی کہانی دیکھو کیا تھی، بندے کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ نواز شریف اندر سے ملا ہوا تھا، پھر ایسے غلیظ آدمی کو ہائی کورٹ کا، بلوچستان ہائی کورٹ کا ڈائریکٹ چیف جسٹس، جیسے کوئی افلاطون ہے، یہ کوئی بہت قابل بندہ تھا، یا نہ جانے کتنا بڑا منافق تھا، اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا ہیں۔ اور پھر خیر جب نواز شریف مگر ہو تو پھر بندے کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ نواز شریف کسی بندے کے پیچھے کیوں ہے، اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کے لیے بندے کو پالتا ہے۔ یہ پالا ہوا بندہ کہاں سے چلتا ہوا کہاں تک افتخار چودھری کے ذریعے یہ یہاں تک پہنچا۔ بہت برا بلا کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کامی کہا جاتا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے، جتنی بھی گالیاں ہیں، جتنی بھی لعنتیں ہیں، شاید اس بندے کے لیے کم ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ معاشرے میں اشتعال پیدا کرتا ہے اپنی آبزرویشن کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے۔ دیکھیں یہ علماء کرام بھی اشتعال پیدا کرتے ہیں، نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں، جب دوسرے فرقے کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ منافرت پیدا کرتے ہیں، یہ اشتعال پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتا ہے، آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، سیم ہی ان مولویوں والا جو منافرت پھیلاتے ہیں، شر انگیزی معاشرے میں پیدا کرتے ہیں، اشتعال پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، یہ سیم یہ بندے کا وہی کردار ہے۔ دیکھیں یہ 6 جج ہائی کورٹ کے ہیرے، جنہوں جو ڈٹے، جو سامنے آئے، اس کے بعد اور عباس صاحب ہیں جج، اور بھی کئی جج ہیں، یہ شہزاد ملک صاحب ہیں، تو ان کے معاملے میں یہ گندے آدمی کا کردار دیکھیں، اس نے کس طرح ان کو دبانے کی کوشش کی، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، لنگر آن کر دیا معاملے کو۔ کس طرح کا یہ اس کا گندا کردار ہے، کس طرح کا یہ غلیظ آدمی ہے، اور بات یہ آئین پاکستان کی کرتا ہے۔ سامنے اس نے کتابچہ رکھا ہوتا سبز رنگ کا، یہ آئین پاکستان، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیو، میں کوئی قانون کا بندہ نہیں ہوں، یہ لوگوں سے سن کے، جو وکلا ہیں بڑے بڑے، ان کی باتیں سن کے کچھ تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے ایک بات سن کے بہت حیران ہوا، حیرانگی ہوئی مجھے، یہ اولیاء مقبول جان صاحب کی بات۔ انہوں نے ایک بات کی بڑی شاندار، انہوں نے کہا کہ یہ جو باقی کورٹس ہیں، ہائی کورٹس تک، یہ کورٹس آف لا ہیں، یہ اس لکھے ہوئے سے باہر نہیں جا سکتی جو کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو سپریم کورٹ ہے، یہ کورٹ آف جسٹس ہے، یہ جا سکتی ہے۔ دیکھیں قانون ہے، بڑی چیز ہے، آئین بڑی چیز ہے، ملک ان سے چلتا ہے، لیکن یہ بنایا تو بندوں کو ہی ہے نا۔ سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے کہ یہ جو شک ہے، یہ فلان شک سے ٹکراتی ہے، یا اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہے، اس کا یہ منشا ہے، مطلب یہ اس کی غرض و غایت ہے، یہ وہ تشریح کر سکتی ہے، وہ اس سے ہٹ کے بھی بات کر سکتی ہے، کیونکہ وہ کورٹ آف جسٹس ہے۔ یہ بات مجھے بڑی قانونی طور پر اولیاء مقبول جان صاحب کی پسند آئی اور اچھی لگی، جس کا عام بندے کو ہمیں تو بالکل ہی نہیں پتہ، یعنی کہ باقی ساری کورٹس جو ہیں کورٹس آف لا ہیں، اور یہ کورٹس آف جسٹس ہے، اور قاضی وہ سامنے وہ کتابچہ لے کے بیٹھا ہوتا نہیں، اس سے باہر نہیں جانا، یہ ساری مخصوص نشستیں جماعتوں کو ہی ملنی ہیں۔ ایسا غلیظ آدمی ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ معاملات کیسے ہوئے، کیا ہو رہے ہیں، کس طرح یہ الیکشن کروائے، بڑا لیتا ہے اپنے سارے، یہ کہ میں نے تاریخ دی، میں نے الیکشن کروائے، وہ کیسے کروائے،
तूने तो गंद किया, तूने इलेक्शन क्या करवाए, तूने तो गंद किया, उनके साथ मिल के तुमने तारीख आई सामने। हाँ जी, वो बेचारा अलवी कह रहा था तारीख, इलेक्शन कमीशन बदमाश था, अब भी बदमाश है। वो कहता था नहीं तुम दे सकते, तो वो क्या कर सकता था, तुम्हें नहीं पता। ऐसा गलीज आदमी, गंदा आदमी, खबीस आदमी है, जैसे इसको किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं है बिल्कुल। ये अलवी ने तारीख देनी थी, तुमने दे दी तारीख, चले जैसे कराए वो तुमने, जजेस पहले करवाते थे, अब तुमने ये ACDC से करवाए। ये तो तुम पर लानत हो, तुम्हें वहाँ से बुनियाद तुमने रखी हैं, फिर तुमने बल्ला छीन लिया हैं, फिर कहता है मैंने नहीं किया। अब वो बात करते हैं तो तुम गले पड़ते हो कुत्तों की तरह। उन अपने साथी जजों को वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं बेचारे कि क्या क्या बक रहा है ये, क्या तुझे पेश करता है, ये क्या बातें करता है, तेरे फैसले का ही फ़ायदा उठाया उसने इलेक्शन का, तो पूछो उससे, वो कुत्ते के बच्चे, उनसे पूछो कि तुमने ये गलत इंटरप्रिटेशन क्यों की। एक बड़ी पाकिस्तान की बड़ी पार्टी, पाकिस्तान का नुकसान है। तुम्हें ये वो 3 4 5 बंदे जो उनके इंसानी हकूक़ का ख्याल आ गया जब तुमने उनका इलेक्शन कलअदम करार दिया PTI का, तो तुम ये करोड़ों आदमियों का जिन इनके हकूक़ का तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या कहा जाए इस बंदे को, क्या कहा जाए। शौकत सिद्दीकी का केस बड़ा अच्छा कर दिया तूने, उसको बहाल कर दिया, उसकी पेंशन मिल गई, उसको माल मिल गया, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। वो जो उसने बात की वो तेरा काम नहीं है इंक्वायरी करना। जो उन्होंने जो बताया कि इस तरह ISI कर रही है, ये पूरी कोर्ट्स को काबू करती हैं, जिस तरह ये फैसले लेते हैं जजों से, उसने पूरी बात बताई, वो तुमने उसका कोई फैसला नहीं करना। कितना तो गलीज़ आदमी है। भुट्टो का तुम 45 साल पुराना उसको फेयर ट्रायल देना चल पड़े और अपने सर पर मुंह काला कर लिया कि तो सुप्रीम कोर्ट का ही कसूर था, तुम्हारा ही कसूर था, सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारी ही है हैं। बल्कि तुम अपने साथी जजों को ख़राब करना, बदनाम करना चाहता है। चले, तो अब ट्रायल हो रहा है, अब भी प्राइम मिनिस्टर है ना पाकिस्तान का, साबिक प्राइम मिनिस्टर था है, फिर ट्रायल उसका नहीं हो रहा। खुद कह रहे हैं कि जो तोशाखाना केस है, जो गया आगे अपील की है उन्होंने, साइफर की, उन्होंने कहा जी फिर ट्रायल नहीं हुआ है। वो फिर ट्रायल नहीं हुआ तो उसका तीरथ पर कोई असर नहीं होता। वो 45 साल पुराना केस है भुट्टो की फांसी वाला, तो वो तुमने निकाल लिया फिर ट्रायल बताने के लिए। तो इसका क्या, ये आप 40 45 साल बाद जाकर पता चलेगा कि फेयर ट्रायल हुआ या नहीं हुआ। वो खुद आप कह रहे हैं ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ, इसको पीछे फिर रिवर्स कर दें, दोबारा से शुरू हो जाए। किसका कसूर है? उसका कसूर बेचारे का। फेयर ट्रायल तुम खुद नहीं होने देते, ये ऊपर जो बदमाश बैठे हुए हैं वो नहीं होने देते। हाय हाय हाय। अब आइन आइन के पीछे है जी, आइन करना है जी, जहाँ जरूर जो चाहे आपका हुसन करिश्मा साज करे। हाँ जी, खिरद का नाम जनू, जनू का नाम खिरद रख दिया, जो चाहे आपका हुसन करिश्मा साज करे। आप चीफ जस्टिस हैं, जो चाहे आप करें। अब दफ़ा 144 से लगाना आर्टिकल में शामिल है, आइन में शामिल है। कब लगानी है? जब एक जमात प्रोटेस्ट करने के लिए तारीख देती है, पूरे सूबे में दफ़ा 144 लग जाती है। आइनी है, आइन के मुताबिक ही हो रहा है ना। शर्म नहीं आती इस बंदे को, शर्म नहीं आती इस बंदे को। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में ये अवलियत पर पोजीशन है इस बंदे की। बाकी जो कुछ कर रहे हैं इसकी मदद से कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इसकी मदद से कर रहे हैं। हाँ जी, और फिर वो MPO के तहत गिरफ्तारियाँ, जो कानून है ठीक है बनाया है अंग्रेज़ ने कानून, आइन में शामिल है। देखो तो सही किस तरह एक एक बंदे पर कितनी दफ़ा उनको गिरफ़्तार किया जाता है इस तरह। ये मंशा है उसकी, दफ़ा 144 की ये मंशा है जिसके तहत ये हो रहा है। बाकी आइन की कोई मंशा नहीं है, वो नहीं देखनी होती, गर्ज़ ग़ायत नहीं कुछ देखनी होती। क्या बात करता है ये बंदा। मैं बस क्या कहूँ, यही मैं कहना चाहता था कि इस बंदे की आइन पसंदी जो है ना, किस कदर मुनाफ़िकाना है, किस कदर गलीज़ है, कबाहत है कितनी। और ये लोगों को मुश्तिल करता है, जज्बात को मुश्तिल करता है, लोगों में इंतशार पैदा करता है, खून में इंतशार पैदा करता है, माशरे में इंतशार पैदा करता है। ये ऐसी बात करता है, जजों का साथ नहीं देता। ज़ुबानी कलामी से ही तुम कहोगे मैं अपने जजों के साथ खड़ा हूँ, तुमने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा उनके हक़ में। हैं, ये इस क्या क्या चीज़ है तुम्हें जो रोक रही है? क्या है तेरे? कितना तू काना हो गया किसी का, जो जो तू बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। लानत तो कर सकते हैं हम तुम्हें, बल्कि तमाम लानत करने वालों की तुम पर लानत, तमाम गालियाँ जो निकालते हैं वो सब गालियाँ तुम्हारे लिए, बल्कि वो भी तेरे लिए छोटी हैं। तू इतना बड़ा बन गया, कैसा बंदा है तू, कहाँ तक तू पहुँच गया,
किस कुर्सी पर तू बैठा हुआ है, क्या तू फैसले देता है करता है। कुछ तो हया कर, कुछ तो शर्म कर, तू पाकिस्तान का कुछ तो लिहाज कर, है कुछ तो ख्याल करना चाहिए। तो क्या कहा जाता है आइन पसंदी को, आइन से बाहर नहीं निकलना। तो मैं दरअसल वही, और ये मकबूल जान साहब की बात, कि ये बात देखें कितना जाहिल आदमी है, इसको इस बात का नहीं पता कि वो कहता है कि ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, उसी के मुताबिक नहीं। वैसे भी आइन की मंशा देखनी होती है, आइन अवाम के लिए बनाया जाता है और अवाम की बेहतरी के लिए बनाया जाता है, भलाई के लिए बनाया जाता है, जिसके मुताबिक हम मुल्क ने चलना होता है। तो उसका क्या हशर हो रहा है, क्या हशर कर रहे हैं, उनको नहीं पूछना। इलेक्शन तूने करवा दिया, जो 90 दिन के अंदर नहीं हुए, आइन तोड़ा जिन लोगों ने, उनको फिक्स करना तेरे बाप का काम था। वो किसने करना था? वो भी तूने करना था। क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं इलेक्शन हुए? के और ये पंजाब के जो 90 दिन के अंदर होने थे, वहाँ जो निगरान हुकूमतें इतनी लंबे अरसा गुजर गई, और उसके बाद जो वफाकी हुकूमत है वो भी इतनी लंबे अरसे तक गुजर गई, लाइन टूट गया। तो ये किसने पता करना है, किसने पूछना है? काजी तुम्हें जितनी ज़िंदगी आगे है, लोग गालियों से ही याद करेंगे, बददुआओं से ही याद करेंगे। अल्लाह तेरी कब्र को आग लगाए, अल्लाह तुझे जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिराए। होता ऐसे कुछ नहीं है, मैं तो बस एक तेरे साथ मोहब्बत का इज़हार ही है ये, और कुछ नहीं है, इससे और कुछ नहीं होता। लेकिन ये दिल से यही निकलता है कि अल्लाह तेरी कब्र को आग लगाए, तेरी नस्लों की कब्रों को आग लगाए, और तुझे तबाह व बर्बाद करे, ज़लील व ख्वार करे। अब भी तुम ज़लील व ख्वार है, अब तो बना ठना हुआ सामने बैठ जाता है, जुब्बा कुब्बा पहन कर जजों का, अंदर से तो गलीज़ खंजीर जैसा है। और आगे भी इंशाअल्लाह तेरा हशर जो है आखिरत में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तू ऐसा बंदा है, तो कुछ तो आइन और कानून का ख्याल कर, कुछ तो शर्म हया कर, कुछ तू मुसलमान है, कलमा गो है, तुमसे तो वो हिंदू बेहतर है। वो जो जज उनका सुप्रीम कोर्ट का बेचारा लगा हुआ है, वो बहुत बेहतर है। ये हमारा एक इधर से जो जज था, वो मेरे ज़हन में नाम निकल गया, वो बेहतर था। अब कितने कितने अच्छे अच्छे जज गुजरे, तुम भी एक जज है। जस्टिस मुनीर को भी तुम पीछे छोड़ गया है। जस्टिस मुनीर भी तुमसे अब बेहतर लगने लगा है। तो तुम्हें कुछ हया करना चाहिए, तुम्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। अब तुम भी मेरी तरह आखिरी पहुंच गया है दहलीज पर, कब्र की दहलीज पर। कुछ खौफ खुदा कर, कुछ खौफ खुदा कर, हैं। अल्लाह तेरी कब्र को आग लगाए। अब बंदा हदायत हासिल करना चाहे तो हदायत मिलती है, ऐसे नहीं। बस तेरे लिए यही दुआ, बद दुआ समझेगा, अल्लाह तेरी कब्र को आग लगाए।